Gauss's competitive exclusion principle. Gauss's competitive exclusion principle. It states that हम competition लिख रहे हैं when two or more species in the same habitat have the same requirement for resources, bracket में लिखोगे food and space. इसमें Gauss's competitive exclusion principle, it states that two closely related species हम इसे एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें काफी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू द डेफिनेशन. It states that two closely related species competing for same resources cannot coexist. Two closely related species competing for same resource cannot coexist indefinitely. Coexist. Two closely related species competing for same resource cannot coexist co-exist indefinitely, and inferior one will be eliminated eventually. Inferior one will be eliminated eventually. Inferior one will be eliminated eventually. So this was about competition. The Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species cannot coexist, and the inferior one will be eliminated. Now coming to the next part, that is parasitism. Competition में दोनों का हार्म हो रहा था. Parasitism. It is a relationship between parasitism. It is a relationship between two species. और इसमें होता है parasite और host. It is a relationship between two species in which one benefits on the host. It is a relationship between two species in which one benefits on the host. In which one benefits on the host of the other. मुझे एक चीज बताएगा क्या? क्लास लगाते लगाते कुछ और देखना हो किसी और की वीडियो यूट्यूब में इसकी वीडियो देखना प्रियांशु म्यूट योरसेल्फ. तो कैसे देखे? वो नहीं देखा. प्रियांशु म्यूट करो बेटे अपने माइक को. रिपीट कर दो ये. ओके. बच्चे इसमें कंपटीशन में पैरासिटिज्म में इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स द होस्ट, in which one species in which sorry, it is a relationship between two species in which one benefits on the host of the other.
इसमें नेक्स्ट लिखो, a parasite lives on the body of other organism called host. Parasite lives on the body of other organism called host for food and shelter. For food and shelter. On the basis of their nutrition, they are of different types. Parasites are of different types. अगर किसी की बॉडी पे रह रहे हैं देन इट इज एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर रह रहे हैं एंडोपैरासाइट। और एक आप लोगों ने क्रो और कोयल के केस में पढ़ा था, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। तो 3 डिफरेंट टाइप्स की हैं। हेडिंग लिखो टाइप्स, तो सबसे पहली टाइप आप लिखोगे एक्टोपैरासाइट। जैसे हमारी बॉडी पे आते हैं लाइसिस, डॉग्स की बॉडी में आते हैं टिक्स, तो पैरासाइट में लिखो एक्टोपैरासाइट में पैरासाइट दैट फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट। Parasite that feeds on external body of host organism. Parasite that lives on the external surface of host organism. For example, lice on human and ticks on dogs. Lice on human and ticks on dogs. इसी के अब साथ लिखो सेकेंड टाइप एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में parasites that live inside the host body, that lives inside the body of host, the host body, at different sites. It can be liver, it can be kidney, it can be RBCs, it can be lungs also. For example, tinea or tapeworm. कहाँ रहता है ये tinea or tapeworm? Present in the intestine. yes, digestive system, in human digestive tract. Tinea or tapeworm present in human digestive system. Next type लिखो brood parasitism. ब्रैकेट में लिखना बर्ड्स में ही होती है। इट इज अ स्पेशल पैरासिटिज्म इन विच brood parasitism, it is a special parasitism in which parasitic birds parasite bird, it is an example in which parasitic bird lays its eggs in the nest of host, lays its eggs in the nest of host,
It is an example in which parasitic bird lays its eggs in the nest of host and lets the host incubate them. Parasitic bird lays its eggs in the nest of host. ये हम पढ़ चुके हैं already इस बारे में. Brood parasitism and lets the host incubate them. Example है crow and quail. Example. Next type is commensalism. It is an interaction. It is a type of interaction in which one species is benefited and other is neither harmed nor benefited. It is a type of interaction in which one species is benefited and other is neither benefited nor harmed. For example, orchid growing as epiphyte on mango branch. For example, orchid growing as epiphyte on mango branch. ऑर्किड को क्या बेनिफिट हो रहा है? मेन ऑर्किड इज अ पैरासाइट, लेकिन ऐसा पैरासाइट है विच इज नॉट डिराइविंग एनी न्यूट्रिशन, दैट इज व्हाई इट इज ओनली डिराइविंग द शेल्टर फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म. एक को तो बेनिफिट हो रहा है, इट इज जस्ट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ गेटिंग शेल्टर, और दूसरा जो ट्री है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज इट इज नॉट डिराइविंग द नरिशमेंट या न्यूट्रिशन. तो ऑर्किड्स ग्रो एज एपीफाइट on mango या किसी भी fruit tree पे, and in this case orchid is benefited by getting the shelter whereas tree is neither benefited nor harmed. इसी में एक और एग्जांपल लिखो, clownfish. Clownfish living among sea anemones. Sea anemone पता है आप लोगों को, हाइड्रा लाइक, दे हैव टेंटिकल्स. तो क्लाउनफिश इनके बीच में रहती है. क्लाउनफिश लिविंग अमंग सी एनेमोन गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स. Clownfish living among sea anemone get protection from predators. Which stays away. आपने लिखा sea anemone get protection from their predators, which stay away from the stinging tentacles of sea anemone. Which stay away from stinging tentacles of sea anemone. Stay away from stinging tentacles of sea anemone. Next type लिखो. हम क्लाउनफिश को नहीं लगता स्टिंग? नहीं, उसका साइज छोटा है तो वो तो चली गई सीधा ही. टेंटिकल्स दे आर स्प्रेड आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ आते हैं, और जैसे ही ये फिशेस हैं बहुत छोटी हैं साइज में तो सीधा चली जाती हैं अंदर उसके. इवन और टेंटिकल्स जो है उसके आसपास, उसके नीचे ही रहती हैं.
ताकि आसपास भी कोई भी जानवर इनको खाने के लिए आएगा, अटैक करने आएगा, तो टेंटिकल्स की वजह से ही वो पैरालाइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म तो आप लोगों को पता है, इंटरेक्शन इन विच both the species are benefited. इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, तो सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइकन इन विच बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, तो लाइकन्स लिखोगे। symbiotic association between fungi and algae. Symbiotic association between algae and fungi. Between algae and fungi, green algae and fungi. दूसरा आप लिखोगे mycorrhiza, MYCORRHIZA. mycorrhiza में लिखो association between fungi and roots of higher plants. Association between fungi and roots of higher plants. इन दोनों में कैसे बेनिफिट हो रहा है? फंजाई हेल्प द प्लांट, fungi help the plant in absorbing nutrients from the soil. Fungi help the plant in absorbing nutrients from the soil. In return, fungi will get energy yielding carbohydrates. In return, fungi will get energy yielding carbohydrates. इसी में थर्ड टाइप लिखो symbiotic association. Symbiotic association में लिखो between root nodules of symbiotic association between rhizobium bacteria and root nodules of legume plants. Between rhizobium bacteria and root nodules of legume plants. इसके साथ ये कंप्लीट हो गया है सारा। आप अलग से हेडिंग लिखोगे, जब हम ये चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और एक एक एग्जाम्पल है, तो प्लीज़ टेक आउट योर एनसीईआरटी फॉर द नेक्स्ट क्लास। बट अभी आज हम सिर्फ टेस्ट, आज आप लोगों का टेस्ट भी है, याद है सबको? आज आप लोगों का टेस्ट है। सबसे पहले तो जो पिछला पार्ट था, राइट डाउन द क्वेश्चंस फर्स्ट। टेस्ट के नहीं, पहले अभी ये कंप्लीट करेंगे। लिखो, कुछ लॉज रह गए हैं वो लिखो। पहला लॉ लिखो,
other topics other apart from your NCERT. पहला लिखोगे शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस. मुझे नेक्स्ट क्लास में सबके पास NCERT बुक होनी चाहिए. शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, इसके बारे में लिखो. शेल्फोर्ड लॉ के बारे में. According to this law, organisms have ecological maximum. According to this law, organisms have ecological maximum and minimum value. Organisms have ecological maximum and minimum with the range value, with the range in between, with the range in between which represents limit of tolerance. Range in between. Which represents the limit of tolerance. Which represent the limit of tolerance. नेक्स्ट लिखो. ये आपने किया हुआ है +1 क्लास में भी. दोबारा लिखो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. Blackman law of limiting factors. This states that when a process is conditioned by, it states that when a process is conditioned by number of pays, when a process is conditioned by number of pays, then the controlling factor is the slowest factor. Controlling factor is the slowest factor. मम्मी शेल्फोर्ड वाला लॉ एक्सप्लेन कर दो. ओके, शेल्फोर्ड वाला लॉ. अच्छा, इसमें शेल्फोर्ड ने ना बताया कि हर एक की कोई रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम की. जैसे अगर हम आपको बताएं पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड हैं जो अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, बट वो टेम्परेचर रेंज है. जैसे 100 डिग्री के अबव अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो आगे नहीं बदल पाएंगे, अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज कर पाएंगे, शिफ्ट नहीं कर पाएंगे. तो देयर इज अ रेंज. हमारी बॉडी की रेंज क्या है? 25 to 35 या 37. अगर बाहर 40 भी होता है तब भी हमारी बॉडी अनईजी होनी शुरू हो जाती है. तो दिस इज व्हाट इज अ रेंज. जो टॉलरेबल रेंज है वो शेल्फोर्ड ने, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है. राइट डाउन द क्वेश्चंस Okay. नाउ. ओके, मम्मी एक अमेंसलिज्म का एग्जांपल दे दो. हाँ, अमेंसलिज्म मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को. कमेंसलिज्म में जैसे बच्चे देखो, अभी आप लोगों को ये क्लियर है कि कमेंसलिज्म में क्या था? यस, कमेंसलिज्म जिसमें एक बेनिफिट One हो is रहा है. benefit. यस. एंड व्हाट अबाउट अमेंसलिज्म? कोई बता सकता है वैसे अमेंसलिज्म में क्या एग्जांपल आएगी? कैन एनीवन टेल मी एग्जांपल? और अमेंसलिज्म इंटरेक्शन क्या थी? One is harmed, other is not affected.
हाँ, दूसरे को इफेक्ट नहीं हो रहा, तो कोई ऐसी इंटरेक्शन जिसमें किसी अकेले को हार्म हो रहा हो। यस। मैम ह्यूमंस में जब पैरासाइट्स रहते हैं तो ह्यूमंस को हार्म हो रहा होता है। नहीं, पर दूसरे को बेनिफिट हो रहा है ना, यस सर। तो इसमें दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कोई ऐसी एग्जाम्पल सोचो बच्चे मेंसलिज्म की, जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैम राइजोबियम हो गए। राइजोबियम में दोनों को फर्क हो रहा है। राइजोबियम तो बच्चे वो बैक्टीरिया है ना, जो एक को शेल्टर दे रहा है, एक राइजोबियम को शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, और दूसरे को वो नाइट्रोजन दे रहा है। एक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आपने देखा हो, इन केस ऑफ टॉल ट्रीज, in case of tall trees, it will not allow the other trees to grow in their vicinity. Maybe because of their shade, अगर shade आ रही है तब भी नहीं नीचे वाले grow कर पाएंगे, और maybe because they are taking all the nutrients and water from the soil. जैसे मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ था कि यूकलिप्टस के आसपास आप देखोगे ग्रास भी नहीं होती, बिल्कुल रेत हो जाती है, रेतीला हो जाता है, सैंडी सॉइल हो जाती है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को अपने टाइम पे अपने पास ग्रो नहीं होने दे रहे, और सारा का सारा नरिशमेंट आप डिराइव कर रहे हैं। तो दूसरी स्पीशीज क्या हो रही है, हार्म इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पीशीज। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे है चाहे नहीं है दूसरा। दिस इज एन अगेन एग्जाम्पल ऑफ एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एक टर्म है जिसमें एलिलोपैथी में क्या होता है, कुछ कहते हैं कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं कि इनके आसपास कोई आए ना। इनफैक्ट अगर आपको बताया था मैंने कि आप सफेदे का जो पेड़ है यूकलिप्टस है, उसमें अगर उसके लीफ को आप थोड़ा सा क्रश करके देखो तो उसमें बिल्कुल वही ओडोमोस की स्मेल आती है, क्योंकि इंसेक्ट रिपेलेंट है, वो उसके अंदर होता है वो। यूकलिप्टस ऑयल भी हम लगाते हैं, अगर आप यूकलिप्टस को पानी में उबाल के पत्तों को रख दोगे तो इट एक्ट एज छिड़काव करोगे तो दैट इज एन इंसेक्ट रिपेलेंट ओनली। ओके, तो आप अमेंसलिज्म में आप लिखो, अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो। इसमें one organism is harmed and other is unaffected. और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, a taller plant may inhibit the growth of other shorter plants. Taller plant may inhibit the growth of other shorter plants. Taller plant may inhibit the growth of other shorter plants in its vicinity. और इसमें टर्म भी क्या लिखवा दी मैंने आपको, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी। नेक्स्ट लिखो, नेम द साइंटिफिक टर्म्स फॉर द फॉलोइंग।
नेम द साइंटिफिक टर्म फॉर द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले लिखोगे फ्रॉग ईट्स द ग्रास होपर। ये कौन सी टाइप ऑफ इंटरेक्शन है? बच्चे, फ्रॉग ईट्स द ग्रास होपर। प्रीडेशन। यस, इट इज प्रीडेशन। प्रीडेटर और प्रे आ गया। दूसरा लिखोगे ट्राइकोनिम्फा इन दी गट ऑफ टर्माइट्स। आप लोगों को पता है जो टर्माइट्स हैं वो खा सकते हैं वुड को, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पेट में ही है ट्राइकोनिम्फा, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। ट्राइकोनिम्फा इन दी गट ऑफ टर्माइट। ट्राइकोनिम्फा इन दी गट्स ऑफ टर्माइट। एक को शेल्टर मिल रहा है, दूसरे को फूड डाइजेशन में हेल्प हो रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ Mutualism. म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। अब देयर इज डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म में क्या है कि आपस में उनका एसोसिएशन है बट दे कैन सर्वाइव इवन इफ दे आर केप्ट आउटसाइड। जैसे अब सी एनेमोन और अपने क्लाउन फिश, उसमें एक को बेनिफिट, सॉरी नॉट सी एनेमोन क्लाउन फिश, सी एनेमोन और एक क्रैब आता है हर्मिट क्रैब, उसकी शेल पे रहता है सी एनेमोन। तो हर्मिट क्रैब जहाँ जहाँ ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो हाइड्रा लाइक ऑर्गेनिज्म है और वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उसको मूवमेंट मिल रही है। और दूसरे के ऊपर वो आ रहा है, दूसरे के ऊपर वो सिर्फ शेल्टर ले रहा है, उसको हार्म नहीं कर रहा। तो इसमें भी आपस में उन्होंने म्यूचुअली एक दूसरे के साथ एसोसिएशन किया। और सी एनेमोन उसको किससे बचा रहा है, क्रैब को, फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हैज टेंटिकल। तो ये आएगी एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म। दोनों आपस में इकट्ठे भी रह रहे हैं लेकिन अलग अलग भी रह सकते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि वो बाहर रह ही नहीं पाएगा, ये बैक्टीरिया, ये जैसे टर्माइट्स हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरियाज आर हेल्पिंग द टर्माइट्स इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। गॉट इट? सिम्बायोसिस। अब जो आपने लिखा है ट्राइकोनिम्फा इन द गट ऑफ टर्माइट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। जैसे लाइकन्स को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर आप लाइकन्स में सोचो एल्गी और उसको अलग अलग करना है फंजाई को, इट इज नॉट पॉसिबल। थर्ड टाइप लिखो सी एनेमोन अटैच टू hermit crab. Sea anemone attached to hermit crab. HERMIT. Mutualism. Plasmodium on the female Anopheles mosquito. ये कौन सी होगी? Plasmodium on the female Anopheles mosquito. मैम इसमें तो दोनों का फायदा हो रहा है। नहीं, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट प्लाज्मोडियम ने उसकी बॉडी को यूज किया और वो ग्रो ही नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने गेमीट्स बनाने थे तो उसकी बॉडी को यूज किया, और वो एक तरह से वेक्टर था, समझे? तो इट इज अ काइंड ऑफ अ पैरासिटिज्म, किसी और की बॉडी को यूज करना, इस्तेमाल करना, तो पैरासिटिज्म हो गया। नेम टू बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। नेम टू बेंथिक। बेंथिक मतलब विच रिमेन अटैच्ड टू द सॉइल। एक होते हैं प्लैंक्टोनिक,
which are free floating. एक होते हैं benthic which are attached to the soil. एक होते हैं बीच में जो रहते हैं, they are nectons. वाटर को 3 लेयर्स में किया ऑर्गेनिज्म, या तो सरफेस में प्लैंक्टोनिक, जमीन पे चिपके हुए बेंथिक, बीच में फ्री फ्लोटिंग होते हैं नेक्टॉन्स. तो अभी सिर्फ पूछा हो गया बेंथिक, नेम टू बेंथिक ऑर्गेनिज्म. तो इसमें एग्जांपल लिखो स्नेल्स एंड स्लग्स. स्नेल्स एंड स्लग्स. The insect feeding on plant sap are called as. The insect feeding on plant sap are called as. Insect feeding on plant sap are called as phytophagus. 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 Why do organisms migrate? माइग्रेशन किस रीजन से हो सकती है? मेन रीजन क्या है माइग्रेशन का? What is the main reason? Food और water. मुझे इतनी दूर दूर से माइग्रेट करने का कोई रीजन है? इट इज नॉट फूड, क्योंकि रास्ते में फूड बहुत मिलेगा उनको. टेम्परेचर. Temperature. यस, इट इज दी स्ट्रेसफुल हैबिटेट. बिकॉज फूड तो उनको मिल जाएगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके वो इतनी दूर कंट्रीज को क्रॉस करके आते हैं. देयर इज अ रीजन टू अवॉइड स्ट्रेसफुल हैबिटेट. टू अवॉइड stressful habitat. बच्चे, now write down the questions and I want answers in 10 minutes. आप लोगों को याद होगा, बताया था. कितने बच्चे ने पढ़ाई की है लास्ट टॉपिक की? रेज योर हैंड. कितने बच्चे पढ़ के आए हैं? ओके, विदिता, संजना, अनुश्री. बच्चे, आपको बताया गया है कि हर क्लास में आप लोगों का टेस्ट होगा रिटन. इससे क्या होगा, आप लोगों का भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं. बस ये 4 स्टूडेंट्स ने हाथ रेस किए. Okay, write down 2 more questions. What are regulators and conformers? ये टॉपिक इश्मन ने पूछा था लास्ट क्लास में. इश्मन? Okay. No, Ishman is not in the class, so I'll discuss this topic in the next class. एक होते हैं conformers, एक होते हैं regulators. नाम से पता चल रहा है organism can maintain their temperature or maintain homeostasis by changing their body temperature or osmotic concentration. Conformers क्या होते हैं? Which cannot maintain. Ma'am, osmotic concentration. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब वाटर की रेगुलेशन. जैसे वाटर में नमक ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है, अगर ब्लड में या फिर आपकी बॉडी फ्लूइड्स में नमक ज़्यादा है तो वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एंडोस्मोसिस. नमक कम है तो एग्जॉस्मोसिस हो जाती है. चीनी के लिए भी सेम. ओके. बनता क्यों है यूरिन? यूरिन इसलिए बनता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव, टू रिमूव एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ शुगर, ताकि बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहे, बॉडी का ब्लड की कंपोजिशन वही रहे, तभी ये फॉर्म होते हैं. ओके, सो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज राइट डाउन. यू हैव टू सेंड मी द आंसर्स बाय 2:15. राइट डाउन द क्वेश्चंस. जो फिशेस मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रहती हैं वो कैसे सरवाइव करती हैं? हाँ, अडेप्टेशन वो क्या उनके पास?
हाँ, मुझे एक्चुअली में कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो मरीन रहती हैं और वो जाती हैं माइग्रेट करती हैं फॉर सपोनिफिकेशन। इसको बोलते हैं मुझे अपना आई फॉरगॉट दैट नेम, सॉरी, नॉट सपोनिफिकेशन, दैट टर्म इज नोन एज मुझे सिर्फ एग्स ले करने के लिए जाएंगी फॉर टू फ्रेश वाटर। मरीन फिशेस हैं, दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर ओनली टू ले एग्स, क्योंकि एग्स जो हैं अगर मरीन वाटर में नमक वाले पानी में आएंगे तो वो एंडोस्मोसिस से बर्स्ट हो जाएंगे और एग ले करते ही उनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही वो वापस आने की कोशिश करती हैं उनका या तो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है, अगर तो पास में है पानी तब वो माइग्रेट हो जाती हैं, बट आफ्टर आई फॉरगॉट दैट टर्म। स्पॉनिंग। हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। नहीं, स्पॉनिंग नहीं बोलते बेटे, कुछ और है। मैम स्पॉनिंग। spawning, that is called as spawning, SPA। का जो है एंडोस्मोसिस की वजह से बर्स्ट ना हो जाए। और कुछ ऐसी होती हैं जो बीच में रहती हैं, दोनों का जो वाटर जहाँ मिलता है, दैट इज एस्चुरी, जहाँ फ्रेश वाटर और रिवर वाटर मीट करते हैं, मरीन वाटर, तो एस्चुरीज हैं, वहां पे रहती हैं कुछ फिशेस। तो उनके लिए तो सर्वाइवल इजी है, लेकिन कुछ जो सिर्फ माइग्रेट ही करती हैं फॉर लेइंग एग्स, दैट इज स्पॉनिंग। ओके, हम बच्चे ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, एक एक चीज है, सब कुछ गिवन है इसके अंदर। तो माइग्रेशन में वही वर्ड्स क्यों करती हैं माइग्रेट, टू ले एग्स, और अगेन टू ओवरकम द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ओके, नाउ राइट डाउन द मैम क्वेश्चन। एक और बात पूछनी थी। हाँ हाँ मैम जो डेड सी है वो एक लगून है? हाँ, लगून्स होते हैं जहाँ पे ज्यादा सेलाइन कंडीशंस हैं। हमने लिखा था ना इकोलॉजिकली जो है कंडीशंस जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब जैसे सारे आसपास जो थे आपने लगून्स, मतलब जैसे आसपास जो सॉल्टी एरिया और बीच में जो पानी है उसमें सॉइल सारी ड्रेन ऑफ हो रही है, तो कंसंट्रेशन जो उसकी बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है नमक की। तो इसी वो डेड सी में भी यही है, बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर पाता, और हमारी अगर बॉडी जाएगी वो भी फ्लोट करेगी। ओके, यस मैम। तो अब लिखो क्वेश्चंस। आप लोगों ने अभी सेंड करना है मुझे ये आंसर्स बाय 2:15। इसमें हमने लिखो नेम टू symbiotic nitrogen fixing bacteria। डिफाइन पीडोजेनेसिस, PEDOGENESIS। आप लोगों ने लिखा हुआ है पीडोजेनेसिस, PEDOGENESIS, पीडोजेनेसिस। मोर्टेलिटी, अभी पीडोजेनेसिस वाला रिपीट कर दो। PEDOGENESIS, pedogenesis. Can anyone tell me what is pedogenesis? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Yes, formation of soil by weathering of rocks. Next लिखो टर्म आप लिख रहे थे mortality and immigration, EMIGRATION। मैम मॉर्टेलिटी के बाद क्या बोला? Immigration, EMIGRATION। हम इमिग्रेशन उसको कहते हैं ना जो हम वो करते हैं माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह पे। यस। अच्छा, एक आई से है, इमिग्रेशन है, एक एमिग्रेशन है। आई वाला मैंने आपको बोला था इन, मतलब आपकी कंट्री में कोई ऐड ऑन हो रहा है, मतलब आपकी जगह में कोई आ रहा है, इन। और एमी मतलब जब हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, दे लेफ्ट देयर हैबिटेट। और आई वाले में क्या है, दे हैव कम इनटू योर हैबिटेट फ्रॉम समवेयर एल्स। ओके, नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन, व्हाट आर ग्रोथ कर्व्स। हम रिपीट कर दो। व्हाट आर ग्रोथ कर्व्स, राइट इट्स टाइप्स। बहुत लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं।
Define carrying capacity. Carrying capacity ecosystem. Diapause. क्या था diapause? Stage of suspended development. Yes, suspended growth. Yes, suspended development. Can you give me an example? Ma'am, zooplankton. Yes, zooplanktons. या एल्गी थोड़ी देर के लिए अपने आपको ग्रोथ को रोक लेती हैं, दैट इज नोन एज डायपॉज. राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोसिस्टम. यूरिथर्मल. Name the bacteria which reside in hot sulfur springs. Name the bacteria which can survive in hot sulfur springs. Last, state Allen's rule. कितने questions हो गए? State Allen's rule. बच्चे कितने questions हो गए? मैम 9. 9. Okay. Please send me the answers by 2:15. मैम ये इकोसिस्टम के बाद वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो. इकोसिस्टम के बाद बच्चे क्या था क्वेश्चन? स्टेट एलेन्स रूल, एस्टिवेशन. मैम वीडियो सेंड कर दो व्हाट्सएप पे प्रीवियस क्लास. प्रीवियस बच्चे आप उस पे चेक करो, ऐप पे आ रहा है ना, यूट्यूब चैनल पे देखो, आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस. ओके. ओके, सारी पुरानी वाली वीडियो सब है सपना. और बाकी बच्चे अभी ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स अभी सेंड करो बाय इन 15 मिनट्स. ओके, जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है सभी सेंड करेंगे. ओके बच्चों, टेक केयर एवरीवन. एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी बुक रखनी है साथ में. ओके Okay. ओके ओके बच्चों, बाय बाय.